reality that if you have married somebody, you can just have sex with that person. The whole concept of, I think, in the world, the concept of consent is not understood by people. They say no, even if it is a sex worker, if the sex worker doesn't say yes, and if you force, that's a rape. Consent is consent, irrespective of the fact if it is your own wife. वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ अकेडबरी जहां हम लेकर आ रहे हैं a woman who has saved and rescued the lives of 10,000 women and children, a name that need no introduction, Miss Pallavi Ghosh. Thank you. थैंक यू मैम फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए आपकी स्टोरी से कि हाउ यू हैव सेव द लाइव्स और एंटी ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट की तरह आप इमर्ज हुई। आप एक फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं इम्पैक्ट एंड डायलॉग की। तो मैं ज़्यादा इंट्रोड्यूस ना कर सीधा ही आपकी तरफ आती हूँ। आप ही बताइए हमें कैसी रही है जर्नी एंड व्हाट इट हैज़ बीन प्लीज। देखिए, जर्नी हैज़ बिन वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट एन ईजी जर्नी बिकॉज एक तो एंटी ट्रैफिकिंग जो फील्ड है वो इट्सेल्फ पूरा मतलब क्राइम और वायलेंस से रिलेटेड है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. ऑल्सो आई एम ए वुमेन, so you know how the world looks at the whole concept of a women going to red light areas, a women going to rescue operations. So it has been very challenging, but then at the end of the day it has been very satisfying personally for me. Not because I am into rescuing people, but because of the fact that at least at the end of the day I feel that there is some way in which I can contribute, you know to make the lives of people better. So of course it has been satisfying. तो रिस्क फैक्टर? Of course, risk factor has been a lot there because earlier I used to work with organizations until 2015-16, and later I started working individually with different law enforcement agencies, and for quite a long time. And I was not like all out in the open. People did not know the work that I was doing because I was I was doing it, like, I won't say directly undercover, but I was not telling the world that I was doing it. Actually, people are thinking that maybe I was not doing it, but I was doing it. But I did not want to tell the world that I was doing it. But then when I started the organization post Corona, so it has been very difficult because I've been doing it alone. And I've been doing it earlier until 2015-16. It was all about rescues. Then after that, with whomever or whatever I was doing, whether it was law enforcement, whether it was individual, I was looking at all aspects of it, starting from prevention to rehabilitation to rescues, and doing everything alone was definitely very difficult and challenging. इतना स्ट्रॉन्ग वाई आया कैसे? लाइक कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट जो एकदम दैट हैज ब्लोन यू कि यार अब इस फील्ड में जाना है, दैट दिस इज माय कॉल? नहीं, ऐसा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी नहीं लगा था. आई नेवर थॉट दैट आई विल बिकम एन एंटी ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट. I saw something when I was very young, around 12, 13, when I was, I went for a holiday in a village somewhere in eastern part of India, where I saw a child went missing. The father came to me. I was also 12. See, that point of time I was myself a child, so it is not possible, to actually think of becoming an activist. Activist बड़ा शब्द है. मुझे ट्रैफिकिंग भी क्या है, तस्करी भी क्या है, I was not aware about it. But मुझे सिर्फ यही मेरे दिमाग में था, what happens to missing children, what actually happens to missing children. वही ट्रेल मैंने पकड़ा, मिसिंग चिल्ड्रन के साथ क्या होता है. फिर ऐसे कर करके टुक मी कपल ऑफ 3-4 years जहाँ पे मैंने डिफरेंट लोगों से बात किया, लाइक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, सीरियस कॉन्वर्सेशन में. बट वही है ना, डिफरेंट डॉट्स गॉट कनेक्टेड, एंड देन व्हेन आई केम टू स्टडी इन दिल्ली, तो फिर देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल. फिर मुझे किसी ने बताया, लाइक आई वाज टॉकिंग इन बंगाली, फिर किसी ने बताया कि आप जिस भाषा में बात करते हो, देयर आर लॉट ऑफ वुमेन ऑफ दैट सेम लैंग्वेज स्पीकिंग इन माई विलेज. सी, इंडिया इज ए कंट्री, ऑफ कोर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज देयर, सब कुछ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी भी हमारे मतलब देश में मतलब इंटरकास्ट मैरिजेस और इंटर रिलीजन मैरिजेस आर नॉट समथिंग दैट आर वेरी एक्सेप्टेड वेरी ओपनली. तो मेरे दिमाग में ये था, तब तक आई वाज 20, लाइक अराउंड 19-20, तब मुझे, मैं गई, तब मुझे मेरे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी थी कि क्यों, कैसे मेरे भाषा बोलने वाले लोग नॉर्थ में शादी हो रही है. तो वो फिर मैं गई गांव में, फिर मैंने बंगाली औरतों को देखा, फिर मैंने देखा उनके जो जिनके साथ उनकी शादियाँ हुई थी, दे वर मेन इन देयर लेट 40s.
तो वहीं से शुरू हुआ. देन आई स्टार्टेड पुटिंग कीवर्ड्स, ट्राइंग टू फाइंड आउट ऐसे रैंडम स्टेट्स मिसिंग. फिर कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत रिसर्च किया, करते 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 समझ में आया कि देयर इज समथिंग नोन एज ट्रैफिकिंग. तो उसी से शुरू हुआ. मतलब इट टुक मी 10 years टू फिगर आउट कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. एंड इट हैपेंड ऑर्गेनिकली, ऐसा कोई प्लान नहीं था. जब मैंने काम करना भी शुरू किया तब भी मुझे नहीं पता था कि मैं एंटी ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट बनूंगी. मैं आई वाज वर्किंग इनटू रिसर्च इनिशियली, देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन रेस्क्यूज. पर आफ्टर आई लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई वाज वर्किंग, उसके बाद भी आई वाज लाइक maybe I will figure out what happens. But धीरे धीरे it went so much in my psyche where I started realizing कि यार रेस्क्यूज तो सब करते हैं, सब लोग हम लोग, बट व्हाट इज द मतलब इसका कॉज क्या है, क्यों हो रहा है ये, क्यों लोगों की तस्करी हो रही है, क्यों लोगों को बेचा जा रहा है, क्यों लोगों की रेस्क्यू के बाद दोबारा तस्करी हो रही है. इसके लिए कोई सोल्यूशन चाहिए. ये सब सोचते सोचते स्टार्टेड वर्किंग विद डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट. And that's when I started realizing that I have to focus on preventing it. इसको कैसे रोका जाए. सो ये मैं सोचती सोचती रह गई. फिर मैं कोरोना के टाइम पे कुछ इंसिडेंट्स हुए, बहुत सारे ऑर्गन हार्वेस्टिंग के केसेस आए. कोरोना पॉजिटिव बोल के लोगों को डेड डिक्लेयर दिया जा रहा था, फिर उनके ऑर्गन्स को निकाला जा रहा था एंड ऑल दैट. all the things when all these things started happening, I was like yeah, अब मैं I would not want to work as an activist alone. I would want to start an organization. So that's when I started the organization. And that the main objective of the organization was to, of course, rescue was one part of it, but to prevent trafficking and to work with communities who are vulnerable, इनके साथ trafficking हो सकती है. And second, to work with survivors जो trafficking से निकाले जाते हैं. So it was like an end-to-end work that we wanted to do to ensure that हम सिर्फ ट्रैफिकिंग को ना ही रोके, ट्रैफिकिंग से लोगों को बचाए भी, और जिन लोग ट्रैफिकिंग के शिकार हो सकते हैं उनको किस तरह का एम्पावरमेंट करे. जो लोग ट्रैफिकिंग के शिकार हो चुके हैं उनका किस तरह से एम्पावरमेंट करे. क्योंकि हमारे देशों में मेन मुझे जो रियलाइजेशन बहुत छोटे से था, women not having financial independence, मतलब औरतों का रोजगार ना होना एक बहुत बड़ा कारण है वायलेंस का. मतलब सिर्फ वायलेंस का नहीं बोल सकती, बट वायलेंस में रहने का ज्यादातर. हाँ, मतलब वो घर में रहती है, वो उनके साथ हर तरह का शोषण होता है, लेकिन वो समाज का सोचती है और ये भी सोचती है कि मैं तो कुछ नहीं करती, तो मैं अगर यहाँ से बाहर चली जाऊँ तो मुझे तो भीख मांगना पड़ेगा. सो इस तरह के थॉट से इट जस्ट हैपेंड द ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको पता कैसे चलता है लाइक दिस इज द इंफॉर्मेशन क्या मुझे इसे रेस्क्यू करने जाना है, बिकॉज देयर आर सो एन नंबर ऑफ चैनल्स, तो वो आप तक कैसे पहुंचते हैं? देखिए डिपेंड करता है. जैसे लोकल पुलिस रीच आउट करती है, लोकल क्या बोलते हैं, लोकल जो बच्चों के साथ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन रीच आउट करते हैं, या फिर काम करते अभी पेरेंट्स भी रीच आउट करने लगे, रिश्तेदार रीच आउट करने लगे. तो अलग अलग लोग रीच आउट करते हैं कि हमारी लड़की या लड़का इस जगह में है, आप उधर तो काम करते हो, क्या आप हेल्प कर सकते हो. जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही एक मैसेज आया था आपसे बात करने से पहले, कोई ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से था, जगह नहीं मेंशन कर सकती. उन्होंने बोला कि क्या मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को रीच आउट किया, और वो बोलने लगे कि वो घरेलू हिंसा के शिकार है. तो मैंने उनको बोला कि हम घरेलू हिंसा पे काम नहीं करते, मैं आपको किसी और संस्था का डिटेल दे सकती हूँ. तो मुद्दा है आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में लोग रीच आउट करते हैं, फेसबुक में रीच आउट करते हैं, इंस्टाग्राम में रीच आउट करते हैं, व्हाट्सएप में रीच आउट करते हैं. पता नहीं व्हाट्सएप में कैसे नंबर है वो. मतलब आजकल ऐसा नहीं है कि लोग, मतलब आजकल बहुत ईजी हो गया है रीच आउट करना किसी को मदद के लिए, तो लोग रीच आउट करते हैं अलग अलग सोर्सेज. तो जितनी लड़कियों को या बच्चों को आपने बचाया, तो अब वो वापस अपनी फैमिलीज तक पहुंची, क्या फैमिली को वो एक्सेप्टेबिलिटी वो दे पाए हैं वो सब? और साथ में अब नॉर्मल लाइफ जीना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब स्कूल कॉलेजेस में उनका जाना और नॉर्मल बच्चों के साथ इंटरेक्शन रखना, क्या वो वैसी लाइफ है जैसे प्री ट्रैफिकिंग वाला टाइम था? नहीं, एक तो देखिए फैमिली एक्सेप्ट तो कर लेती है, लेकिन देखिए देयर आर टू थिंग्स. घर लाना और अपनाना में बहुत डिफरेंस है. ले आते हैं लेकिन एक्सेप्ट पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं. मतलब उनके दिमाग में यही रहता है कि ये तो तस्करी से इसको लाया है, अब इसकी शादी कराओ, या फिर इससे मतलब बेसिकली कुछ ऐसा करो ताकि ये जो बदनामी का है ना वो हट जाए. इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा फैमिलीज की काउंसलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लड़की या लड़का
का जो तस्करी हुआ है जिसका, उसके पीछे उसकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो ऐसे ही उसको तो, वो तो मैं भी तस्करी हो सकती हूँ, किसी की भी तस्करी हो सकती है। ट्रैफिक। हाँ, तो हमने नैरेटिव चेंज करना शुरू किया। हमारा पहला काम था, ये था शी वॉज ट्रैफिक्ड को ना बोल के दे ट्रैफिक्ड हर, ही ट्रैफिक्ड हर। बिकॉज क्या होता है, आप न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल पढ़ोगे तो ये होता है कि शी वॉज रेप्ड, जबकि उसके साथ गलत हुआ। ये होना चाहिए ना, दे रेप्ड हर, ही रेप्ड हर। वी स्टार्टेड चेंजिंग नैरेटिव। एक तो ऊपर से लड़की को या लड़के को समझाना कि तुम विक्टिम नहीं हो भाई, तुम्हारे साथ गलत हुआ, इसके पीछे तुम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इट्स नॉट योर फॉल्ट। जिसने किया है उसका ऊपर फोकस करना शुरू किया, कम्युनिटी के साथ काम करना शुरू किया, कम्युनिटी काउंसलिंग करना शुरू किया, और सबसे बड़ी बात है उनको किसी तरह के रोजगार में डालना शुरू किया हमने। क्योंकि जैसे ही रोजगार में होता है ना तो कॉन्फिडेंस होता है। हमेशा मैंने देखा है, जैसे ही आप पैसे कमाने लगते हो हार्ड वर्क से, तो आपका एक अलग लेवल का, आपके ना एक एजेंसी बन जाती है, वो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देती है। तो इसीलिए इस पे ध्यान देना शुरू किया। और हमने ये भी शुरू किया कि हम लड़कियों को इस तरह बोले कि तस्करी हुई है तो क्या, जैसे कम्युनिटी में कोई बोलता है कि अरे तुम तो गंदे जगह से आए हो, हाँ ठीक है गंदे जगह में थे तो क्या, मतलब जब आप पलट जवाब देना शुरू करोगे ना तो बहुत चीजें चेंज होती है। जैसे मैं आपको छोटा एग्जांपल दूं, हम जब रास्ते में जाते रहते हैं तो लोग बहुत घूरते हैं, औरतें हो मर्द हो, हम सिर्फ बोलते हैं मर्द घूरते हैं, औरतें भी घूरती है, ठीक है। तो हमने क्या करना शुरू किया, हम औरतों उनको घूरना शुरू कर दिया। हाँ, तो वो घूरना बंद हो गया। फिर हमने क्या किया, जैसे मैंने इतने रेस्क्यूज किए हैं, कुछ कुछ गाँवों में जितनी गालियां मुझे औरतों ने दी है, लाइक मर्द तो गाली देते ही है, वो अलग बात है, जितनी गालियां मुझे औरतों से मिली है वो मतलब भयानक है। तो हमको हमेशा क्या लगता है कि पेट्रियार्की जो है, पितृसत्ता जो है, वो ओनली मेन प्रैक्टिसेस इट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज समथिंग दैट्स प्रैक्टिस बाय वुमेन आल्सो। बिकॉज छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं जिन गाँव में काम करती हूँ वहाँ पे बच्चियाँ मुझे बोलती है कि हम थके हारे स्कूल से आते हैं, लेकिन आके अगर हमारा भाई या भैया है वो आता है, उसको हमें पानी देना पड़ता है, खाना देना पड़ता है, पापा नहीं बोलते देने के लिए, मम्मी बोलती है। सो डू यू रियलाइज इट समथिंग दैट इज सो एक्सेप्टेबल इन एवरी फैमिली। मतलब हम बोलते हैं कि लड़का वायलेंस करता है, हम बोलते हैं कि लड़का मारपीट करता है, लड़का कुछ काम नहीं करता है। हाउ मेनी ऑफ अस हैव एक्चुअली टेकन द एफर्ट टू टीच दैट बॉय कि तुम ये करो। लड़कियों को भी तो सिखाया जाता है, प्लेट इधर रखो, अपने कपड़े धो। लड़कों को हम सिखाते नहीं है, सो व्हाई आर यू पुटिंग द ब्लेम। तो इस तरह के जो कॉन्वर्सेशन है हम जब कम्युनिटी में करते हैं, फिर लड़कों को रोने के लिए बोलते हैं, बिकॉज मैक्सिमम गाइज डोंट क्राई, इस वजह से भी बहुत ज्यादा वायलेंस और प्रॉब्लम होता है। सो इससे ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। लड़के बोलते हैं, जैसे मैं अभी ट्रेनिंग जहाँ पे लेती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आई हैव बीन अब्यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, ओपनली बोलती हूँ, ऑफ कोर्स आई हैव बीन अब्यूज्ड। तो जो लड़के आते हैं, जो ट्रेनिंग में बच्चे लड़के आते हैं, वो भी बोलते हैं, 85% बच्चे बोलते हैं कि हम दीदी हमारे साथ भी अब्यूज हुआ है, हमारे साथ भी शोषण किया है। किसने किया है? मासी ने किया है, मामी ने किया है, कजिन ने किया है। तो लड़कों के साथ भी शोषण होता है। सो इट्स नॉट लाइक इट हैपेंस विद ओनली गर्ल्स। अब जैसे ट्रैफिकिंग की भी बात करें, बड़े तादाद में मर्दों के साथ भी ट्रैफिकिंग होती है। मॉडर्न स्लेवरी, उनको स्लेव्स की तरह रखा जाता है, गुलाम की तरह रखा जाता है। हमने बहुत ऐसे भी रेस्क्यूज किए हैं, मैंने बहुत ऐसे भी रेस्क्यूज किए 18-19 में, जहाँ पे बड़े बड़े रूम्स में 25-30 आदमियों को रखा जाता है, एक ही बाथरूम होता है, लेबरर्स है वो, क्या बोलते हैं, ब्रिक की फैक्ट्री में काम करते हैं, गारमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, और ये मर्द है, दे आर मैन इन देयर अर्ली 30s, लेट 40s। तो आपको लगता होगा या फिर लोगों को लगता होगा सिर्फ औरतों की तस्करी होती है, लड़कियों की तस्करी। नो, इट्स नॉट दैट, मर्दों की तस्करी होती है फॉर लेबर पर्पज। इस लेवल तक उनकी तस्करी होती है, उनको 12 तो छोड़िए, 12 तो मैंने कभी बोला, 18 घंटा काम कराते हैं पाम ऑयल प्लांटेशन में, फिर बोलते शुगर केन उसमें, कॉटन फील्ड्स में, फिर फिश इंडस्ट्रीज, जो ये सब कैम्बोडिया हो गया, ताइवान हो गया, मतलब खतरनाक से खतरनाक तरीके में उनको रखा जाता है। उनको स्किन इन्फेक्शन है, उनको एलर्जीज है, उनको एक्जेमा है, एंड उनका कोई से नहीं होता है। उनके जो स्पॉन्सर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स उनके पासपोर्ट सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, और उनको 16-16 घंटा गाड़ी चलाना पड़ता है, वो भाग जाते हैं, फिर वो इलीगल इमिग्रेंट हो जाते हैं। सो it is something that people don't talk about, but it is definitely and happening in a very big way with men and boys too, जो हम बात नहीं करते। तो ऑब्जेक्टिफिकेशन ही है ये, एक कमोडिटी की तरह जो ट्रीट कर देखिए, रहे हैं। औरतों के साथ तो डेफिनेटली इट्स लाइक एन ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड कमोडिटी, बिकॉज क्या होता है, व्हेन in lot of cases when women are bought, like if someone buys a woman for 40,000 or 50,000, there is this mentality that I will be staying with this women for the next 5-6 years,
and then I'll give this women to somebody else because now my expense or the needs that for which I had bought this women has been fulfilled. So maybe I will be, putting her to somebody and getting that money because I cannot get anything more than that. It happens with women. With men, it is, I won't say directly it's objectification, but it's all about, taking out as much of labor as possible. See, from India, thousands and thousands of slaves have been deported at one in 1900s, late 1900s, to different countries across the world for labor purposes. And these people had gone to those countries and contributed to the economy of that country. And that is one of the reason in those countries, there is a day known as Indian Arrival Day, celebrated with like real show and pomp and all that. But low people don't know about it, but huge number of Indian population have been taken through boats and ships to different other countries for slave purposes, and it is all out there in the open, but people don't talk about it. So for labor purposes, men have always been taken, exploited, because they don't know the language, the skin complexion is dark. So the levels of discriminations has been extensive and different. मतलब अलग अलग level when you don't know the language. आप खुद सोचिए ना, for example I am from India. Now if I go to a different country, I am not educated, मुझे language नहीं पता, भाषा नहीं पता, मेरे पास कोई ID भी नहीं है, तो मैं vulnerable हूँ. तो मुझे हर वक्त एक डर रहेगा कि मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई अटैक करेगा, मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती. तो मेरा तो एडवांटेज कोई भी ले सकता है, राइट? सो दिस इज हाउ थिंग्स हैव एस्केलेटेड. जैसे वो गल्फ कंट्रीज में केरला की विमेन को ले जाकर उनका पासपोर्ट फाड़ना और सब होता रहता है. जी, तो मैम एक क्वेश्चन जो आपसे पूछना था, दैट इज द मोस्ट डार्क क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट, दैट इज कि रियलिटी क्या है जो हम सब सुनते हैं और बहुत ही ज्यादा एक वर्ड यूज करते हैं कि ये रेड लाइट एरियाज या ये जीबी रोड्स या फिर ब्रॉथल, इन सब की रियलिटी क्या है? क्या ये वैसा ही है जैसा दिखाया जा रहा है या इसके पीछे इट्स लाइक द ट्रैफिकिंग एवरी टाइम? No, see, it's not like that. The thing is that, see, everything is always sensationalized. It's nothing like that. It is just that most of the times women are trafficked, bought, and made to do like different kinds of work. But just that, people make a lot of hype and all that. Definitely, there are people who work by choice also. But then at the end of the day, all the people whom I have met, या फिर मैंने rescue किया है, मैं जिनसे बात की, everybody said that. Initially when they were bought, when they came to this profession, it was something that was pressured on them, and later they accept it as part of their fate or something. इतना पैसिव? हाँ? इतना पैसिव? It took years ना अभी. Yeah, of course, because for example, if somebody is in this work for many years, and then that person just example, imagine everybody wants to be rehabilitated, everybody wants to go home, but then they have families to feed, they have houses where they have to pay rent, and they have been into this profession for a long time, and the amount of money that is earned, that also is a little bit substantial. Now if they're uneducated, they're illiterate, if you keep them in your house, how much will you pay them? Anyways, India में labor का तो कोई वही नहीं है, like we pay very less, so see, it is not very black and white the way it looks. It has different ways of looking into it. It has different dimensions, so it's not as clear as people talk about it. So that's how it is. तो हमारे जो बॉर्डर्स है जैसे बांग्लादेश, और अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल वाली जो नॉर्थ ईस्ट वाली बेल्ट है, ये थोड़ी ज्यादा वल्नरेबल है in traffic. See, I would say every part of India is vulnerable. Some states are more vulnerable because there is much of poverty, but almost all the states are vulnerable. Like because कहीं ना कहीं poverty तो हर state में है, but eastern states थोड़े vulnerable है क्योंकि वहाँ पे poverty ज़्यादा है, वहाँ पे climate change ज़्यादा है, वहाँ पे क्या बोलते हैं border. It is not smuggling, I guess. No, it's not. I won't say. See, I will tell things only out of my experience. Yeah. I will just say that most of the times it is because of poverty, illiteracy, unemployment. It is also because of climate change. It's also because there are porous borders. Definitely, porous borders mein you never know who is going, who is coming and going. And also there are natural calamities like floods. There are there are cyclones. There are droughts. So yes, sir. It is all about vulnerability. When you are vulnerable, you are bound, if you are not alert,
you are bound to fall in a trap. So that's how the entire cycle works. पॉवर्टी सब कुछ है, लेकिन वल्नरेबिलिटीज भी आजकल सोशल मीडिया से भी लोगों की तस्करी हो रही है. सो डेफिनेटली, और आजकल people from very good families are also falling into the trap. Not exactly trafficking, but getting missing, being क्या बोलते हो आपको, blackmailed. All this is happening because of social media. The kind of people they talk to, the kind of people they interact with, like they don't know who is the person. It's a virtual world. You don't know who is opposite to you. It might be 18-year-old person, like thinking, behaving like a 50-year-old person. So it's very difficult to track people. द डिजिटल मॉडर्न प्यार जिसे हम कहते हैं, तो ये इलोपमेंट और ये सब चीजें भी तो एक ट्रैफिकिंग की तरफ ही जा रहे हैं अगर हम देखें. No, see, not exactly. I would say directly, not exactly, because if somebody is running away with a girl and then selling her all, then only you can say trafficking. But अगर कोई किसी लड़की के साथ भाग रहा है तो आप इसको डायरेक्टली ट्रैफिकिंग तो नहीं कर सकते. आपके पास एविडेंस तो होना पड़ेगा. बिना एविडेंस के आप कैसे बोलोगे कि इट्स ट्रैफिकिंग? Okay. Also, ma'am, this is a like very hype question, organ harvesting. कि अब हम देख रहे हैं कि अभी आपने मेंशन भी किया कि कोविड टाइम में वो डेड डिक्लेयर कर देते हैं, एंड हाउ इट इज लाइक वर्किंग किडनीज और ये सब चीजें तो बहुत. देखिए, see, I have not worked a lot in organ harvesting, so I will not be able to comment much. I will just there were cases like this which I had heard of and not exactly seen, but I had visualized a lot of things. That's when I decided to start the organization. And during COVID, a lot of it was actually told that a lot of people are told to be corona positive, their organs were taken off, sold off. But then you have to understand that everything that you say has to be verified through evidence. True. So unless and until you have, even if people talk, they have to come in the front and tell. So until they say, so you cannot. ये भी है. So this is also a very big challenge. A lot of things have been claimed, a lot of things have been talked about, but then at the end of the day, even if you know it is truth, but you have to, आपको एविडेंस तो देना पड़ेगा. बिना एविडेंस के तो कौन बिलीव करेगा आपको? So that is the challenge. ऑल्सो अभी मैंने थोड़े टाइम पहले एक न्यूज देखी थी. इट वाज अबाउट बेगिंग और द बेगर लॉर्ड, जिनका वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड गैंग था. ही वाज पोजेसिंग अ सी फेसिंग बंगलो इन मुंबई. वो इतना ऑर्गेनाइज्ड था, और उस वक्त एक मीम भी बहुत अच्छा वायरल हुआ था कि जिंदा मुर्गी जो है उसके 200, एंड जब काट कूट दो तो 600 रुपए फॉर द बटर चिकन. दैट मीन्स कि जब उन्हें आप डिसेबल कर देते हो, उनके हाथ पांव काट देते हो और उन्हें बेगिंग की तरफ लेकर जाते हो, इट हेल्प्स द ओनर earn better. So it is like a channel or an organized crime, or you will call it as a trafficking thing. See, it depends, because begging comes under trafficking, but not all begging is like that. It is more like it's like a more of a different kind of a trend that they follow. They kidnap children. In trafficking, mostly people are lured and influenced. But in begging and all that, people are generally, kidnapped, trained, groomed, and there are different areas where they are put for begging. There are different versions. Some might be, but it's like I have not worked a lot in begging. My area of work has mostly been forced marriage, prostitution, labor trafficking, bride trafficking. Going to different countries for all this migration, so this type of conflicts. So in begging, how much ever I've worked not very less, not a lot, but jitna maine kaam kiya, it's like it's a proper organized thing. It happens with proper channels. If you are, what you call, if your hands and legs are cut, then there is a price tag that is there. If you are dumb and dumb, price tag. अगर आप सुबह शाम आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि आप इतने पैसे कमाओ, और शाम तक अगर आप वो पैसा कमा के नहीं लाए तो आपकी पिटाई विटाई होती है. सो बट ये पूरा इट्स ए प्रॉपर प्लान्ड थिंग. इसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इट. और इस पे आपको अगर लग रहा है कि किसी की ट्रैफिकिंग हुई है, आपको अगर लग रहा है वो किडनैप्ड है, और आपको अगर रास्ते में बच्चा दिखता है, तो आप पूछोगे तो आपके पास भी प्रूफ होना चाहिए कहाँ से किडनैप्ड है, कहाँ से ट्रैफिक्ड है. अगर कुछ नहीं है, आप जाके पूछोगे कि ये बच्चा आपका नहीं है, यू डोंट हैव एनी राइट. लाइक आप खुद सोचिए ना, आपके घर में बिना प्रूफ के कोई अगर किसी ने अगर बोला कि आपने चोरी किया है, बिना प्रूफ के अगर बोले कि आपने चोरी किया है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना. सो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द चैलेंज. इसलिए आप ज़्यादा इंटरवेंशन भी नहीं कर सकते, बिकॉज यू नीड टू हैव ए प्रूफ. इफ यू थिंक दैट द चाइल्ड इज नॉट दैट पर्सन, और इफ यू थिंक दैट दिस इज ए रैकेट दैट इज हैपनिंग, यू शुड हैव सब्सटेंशियल एविडेंस कि बोलने के लिए कि भाई
आपका बच्चा नहीं है, मुझे पता है किसका बच्चा है, देन ओनली यू कैन, वरना आप कैसे बोलोगे, वो तो फाइट बैक करेगा ना. सो वही मैं बोल रही थी आपको, a lot of things are claimed, but then you have to have evidence. Without evidence, so no way to proof all this. Also, there is a one thing as you touched कि हम किस तरह से प्रूव करेंगे कि बिहाइंड द मैरिज इज इट द रियल मैरिज, और क्योंकि वो प्रिवेसी वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो मैरिटल रेप्स हाउ वैलिड दे आर. Of course, marital rapes are valid. If the women is coming and telling, see, I personally, How can we tell that this is a marital rape? you cannot tell. The women have to tell. But it has been so much, in that thread, और वो इतना डर है कि कोई आगे आकर देखिए, see, it is not about threat or it is not about डर. The main issue is that the whole concept of marriage is something like, there is this mentality that if you have married somebody, you can just have sex with that person. The whole concept of, I think, in the world, the concept of consent is not understood by people. They say, even if it is a sex worker, if the sex worker doesn't say yes, and if you force, that's a rape. Consent is consent, irrespective of the fact if it is your own wife and you, like, so see, marriage doesn't legalize marital rape, right? It doesn't legalize. Just because you have married that person, you don't have the right to throw yourself on that person. You have to ask consent. इसीलिए we always look at this concept of consent, whether that person has said yes. That's why I said, अगर उसने ना बोला है तो मतलब ना बोला, and if you are forcing yourself, that means it's a rape. So I personally think the reason a lot of people don't want to report it, it's because हमने बहुत normalize कर दिया है. तुम्हारा पति है तो ये तो करेगा ही. Of course, हमारा misogynistic attitude, patriarchy, और हम बोलना नहीं चाहते, लोग क्या सोचेंगे, पति है. मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बहुत होता है, मैंने बहुत देखा है होते हुए. सो आई थिंक क्या बोल सकते हैं, दैट इज हाउ आवर सोसाइटी इज. तो गवर्नमेंट और लोकल पुलिस का इन सब ऑर्गेनाइज क्राइम, और क्योंकि हम हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपकी एनजीओ पहुंचे हर जगह, तो लोकल सपोर्ट, आई मीन द लोकल पुलिस, हाउ मच दे आर वेरी सपोर्टिव. बिना पुलिस के तो मैं रेड पे जा ही नहीं सकती. No NGO or no activist in this world can go and conduct raids without police. Law enforcement, without law enforcement, you are not authorized to conduct raids. कोई भी NGO अगर बोल रहा है उन्होंने रेड किया है, उनके साथ पुलिस हमेशा जाती है. बिना पुलिस के आप रेड पे जा नहीं सकते. What authorization do you have to go and conduct a raid? So of course police is there, always there. You have to go with police. Police has to be there. Without, कभी भी आप किसी भी जगह में रेड नहीं कर सकते विदाउट पुलिस. डेफिनेटली पुलिस सपोर्ट्स, पुलिस सपोर्ट हैज ऑलवेज बीन देयर, वरना हम रेड तो कर ही नहीं सकते. और हम पुलिस के पास भी जाते हैं, हम प्रॉपर पुलिस के पास एप्लीकेशन लेके जाते हैं, पुलिस अपनी टीम देती है तो भी तो रेड जाते हैं. एंड पुलिस को तो गवर्नमेंट भेजती है ना, गवर्नमेंट के पुलिस तो गवर्नमेंट बॉडी है ना. तो डेफिनेटली है. तो आपका एक ब्रेन वॉश करने के लिए कभी कुछ ऐसा कि ये ले लो या ब्राइब ऑफर या ये सब चीजें? नहीं, लाइक सी दैट the sector is so huge, see and the people are so no big. see there are from the, I have got a lot of support from police, I have got a lot of support from the government in terms of the work that I do, especially because I cannot go alone. So I would never say that that I have been not been given support. इतने रेड में इसलिए कर पाई हूँ क्योंकि पुलिस जाती है, वरना मैं कैसे जाऊँ? मैं अकेले जाऊंगी तो people will attack and kill me. So of course their support is always there. मैं कोई भी केस होता है, मुझे पुलिस के पास जाना ही पड़ेगा. बिना पुलिस के मैं जा ही नहीं सकती, चाहे वो घर हो, चाहे वो कॉलोनी हो, चाहे कोई नॉर्मल एरिया भी हो. आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर दैट आई वुड लाइक टू से. सो हाउ इज लाइक योर विजन अहेड कि अब ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि काउंसलिंग इज नॉट द फुल स्टॉप, इट इज जस्ट अ स्टार्ट टू समथिंग. रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आएंगे, अब उसके बाद क्या? नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव है लोगों को पहले तो एम्पावर करना. मेरे पास एट रिस्क गर्ल्स हैं जिनकी ट्रैफिकिंग हो सकती है, और दूसरा है मेरे पास क्या बोलते हैं सर्वाइवर्स, उनको भी मैं एम्पावरमेंट कराती हूँ. सो माई बेसिक ऑब्जेक्टिव इज दैट टू पुट देम इनटू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, where I don't come and speak with you like the way I have today, where they come and speak. Giving them agency, giving them the platform, that is the main objective. Because see, I don't feel I support them, I feel I assist them. Because I think everybody has that potential in them. It is just that they don't get this what you call जो support या फिर platform नहीं मिलता.
So I want to be that platform. So that is the reason the organization has been created. क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि we only work in this. I want कि the people, those जिसके लिए cause is important, the survivors, the victims, they are important. So basically देखिए मेरा ये है कि the reason I started the organization was, and the reason I am doing a lot of podcast and awareness is because I personally feel that this is something like preventing trafficking is something that only community-based organization, non-governmental organizations, activists, academicians can't do. It's kind of a movement, it's an andolan. Unless common people get together, you cannot prevent it. So that is the reason I talk with everybody. Like I have this effort of talking to at least minimum 5 people every day, whether it's online, offline. I used to do 10, बट अगर 10 नहीं होता तो कम से कम 5 लोगों से मैं बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने लोगों से बात करोगे, जितना आप इंफॉर्मेशन स्प्रेड करोगे, उससे आप इस चीज को रोक सकते हो. क्योंकि सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप लॉ एनफोर्समेंट की बात बोलो, गवर्नमेंट की बात बोलो, जिनकी भी बात करो, सबके रिसोर्सेज लिमिटेड है. सब लोग शायद चाहते हैं रोकना, लेकिन पॉसिबल नहीं है. तो जब तक सब लोग ना मिले, एक तो पहली बात है कि मोस्ट पीपल डू नॉट नो व्हाट इज ट्रैफिकिंग. दे सी बिगिंग, दे सी प्रोस्टिट्यूशन, दे सी लेबर. वो देखते हैं, उनको पता है कि एक्सप्लॉयटेशन होता है, लेकिन कहाँ से आते हैं, क्यों होता है, कौन से राज्य से लोग इस तरह के काम होते हैं, क्या ये सही है गलत है, मोस्ट पीपल डू नॉट हैव इन्फॉर्मेशन अराउंड इट. So it's very important to spread as much information as possible. I am not telling anybody to become activists or social workers. Let people be lawyers. Let people be news anchors. Let people do whatever they want. But at least if they're alert, एक phone call से change होता है. Since I've started my venture for the last 4-5 years, I have seen people, they have seen people in trains and they are suspicious. They've called Railway Protection Force. They have seen people, girls or boys roaming in the train. They have contacted, GRP. They have contacted other people. So, एक चीज से फर्क पड़ रहा है. Like people are becoming so alert after I'm talking all out in the open, and then they're taking efforts. अब गाँव में in some of the villages where I work, they are very vigilant. जैसे ही बाहर से कोई आता है काम के लिए, नौकरी के लिए कुछ, they immediately try to call me or call the local police. So we are trying to prevent it. बट यही है कि विथ रेस्क्यूज यू कैन काउंट नंबर्स, इतना रेस्क्यू का वो क्या है. विथ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज समथिंग दैट इज मोर क्वालिटेटिव, उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बट इट्स रियली हेल्पिंग. तो मेरा यही है कि भाई आई पर्सनली फील alone I cannot do a lot of work. I need people, and I don't need people to be with me also. If in their individual capacity, अगर वो अपने गांव में कुछ करे, अगर अपने क्या बोलते हैं आपके उनके कॉलोनी में कुछ करे, स्कूल में कुछ करे, कॉलेज में कुछ करे, देन ऑल्सो बहुत चेंजेस हो सकता है. तो आई थिंक दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. This was really enlightening, and literally it was like a ripple effect. That is very important. So we would just like to end this podcast with this last question, that how much you would like to make our audience aware on the term anti-trafficking. See, awareness सबसे बड़ी बात है. when you are getting people, आप घर में मेड लाते हो, मेड आपके घर में काम कर रही है, प्लीज वेरीफाई करो कि वो मेड के पास जो आईडी है, वो आईडी क्या मतलब ओरिजिनल है, उसको किसी ने बहला फुसला के लाया तो नहीं है, क्या वो माइनर है. आपका ये एंटी ट्रैफिकिंग का तो मैंने ट्रैफिकिंग के बारे में इतना बोल दिया है मैंने, तो मैं बोल रही हूँ कि आप थोड़ा कैसे सतर्क रहो. हमेशा याद रखना, आपके गांव से, आपके घर के सामने से कोई बच्चा गायब होता है तो मोस्टली नोन लोग ही गायब करते हैं, मोस्टली. हाँ, अननोन लोग भी गायब करते हैं, मैं ये नहीं बोलती, क्योंकि देखिए आप बॉम्बे में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, बैंगलोर में बैठे हो, आपको कैसे पता कि उस गांव के उस घर में खाने की कमी है, उस घर में वो आदमी एडिक्शन करता है, मतलब ये सब करता है और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी है. तो उसके वल्नरेबिलिटी के बारे में आपको इतने दूर से कैसे पता लग रहा है. सो माई थिंग इज दैट बी लिटिल बिट अलर्ट when your kids are going around, the kind of friends, I'm not saying that making friends is bad, I'm not saying that going for dates is bad, falling in love is bad, but everybody, irrespective of the gender, whether you are in LGBTQI, whether you are in मतलब male, female, प्लीज बी केयरफुल. आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, जो अगला इंसान है. आप सोशल मीडिया में इतना पोस्ट डाल देते हो, प्राइवेट पिक्चर्स. बी वेरी केयरफुल. यू डोंट नो हाउ दिस पिक्चर्स कैन बी यूज्ड, बिकॉज व्हेन यू पुट योर पिक्चर्स इन सोशल मीडिया, ऑल आउट इन द ओपन. बच्चों के पेरेंट्स बच्चों के बहुत फोटोज डाल देते हैं, स्कूल में बच्चा जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, स्कूल के बाकायदा लोकेशन देख के.
बी वेरी विजिलेंट। आपको नहीं पता, मैं ये नहीं बोल रही सब बुरे हैं, बट सतर्क रहने में तो कोई दिक्कत नहीं है। देन हम वीडियो कॉल में बहुत कुछ एक्सपोज कर देते हैं आउट ऑफ लव, एंड हम वीडियो भेज देते हैं। आजकल तो लड़कों के साथ होने लगा है। लाइक recently in the last couple of months I've received messages and complaints from boys who were telling me कि मैम ऐसा हुआ है कि हमने एक लड़की के साथ वीडियो कॉल किया, सिर्फ बात किया, और हमारे फेस के साथ हमारे प्राइवेट पिक्चर्स का भी एसोसिएशन है, जो कि हमारे नहीं है, किसी और के, और वो 5 लाख रुपए मांग रही है, 6 लाख रुपए मांग रही है। लड़कों के साथ ये हो रहा है, सो हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसके बाद लड़कों के पास अभी ऐसे भी कॉल आने लगा है कि वो लोग किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हैं, फिर कोई लड़की बोल रही है कि मैं इमिग्रेशन में फंसा हुआ, इतने डॉलर्स अब भेज दो मुझे, मैं फिर मैं आ जाऊंगी। फिर उन्होंने मुझे फोन किया, एक दोनों तुम्हें दे भी दिया था, एक ने मुझे फोन किया, मैंने बोला उस लड़की का फोन मत उठाना, फोन नहीं उठाया। 2-3 दिन बाद पता लगा ऐसी कोई लड़की है ही नहीं उस इमिग्रेशन में। तो इस तरह का फेक बदमाशी हो रही है। आपके पास मैसेजेस आते हैं कि आपका आधार ब्लॉक हो गया है, आपके पास मैसेजेस आ रहा है कि आपका ओटीपी एक्सपायर हो जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। कोई बैंक, कोई अथॉरिटी ये सब नहीं करता। आपको लोग ओटीपी पूछते हैं, ये सब मत करिए। बच्चे जब 24 घंटा बच्चों को फोन देते रहते हो, बच्चे जब फोन देते रहते हैं, सॉफ्ट फोन आता रहता है, तो बी वेरी केयरफुल। मतलब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। थोड़े 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 1-1.5 साल से 6-7 महीने से ऐसे केसेस आने लगे हैं जहाँ पे 25 साल से लेके 40 साल की औरतें मिसिंग हो रही है घर से, और मोस्ट ऑफ द केसेस औरतें डिप्रेशन में हैं। तो मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट हो गया आप सोचिए। डिप्रेशन में रह के वो घर से जा रही है, उसके साथ कुछ भी ट्रैफिकिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और सारे अपर मिडिल क्लास फैमिलीज की औरतें हैं। घरेलू हिंसा से ट्रैफिकिंग हो रही है, घरेलू हिंसा हो रहा है, घर में इतनी अशांति हो रही है, लड़कियां सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे लड़के के साथ बात करती है, अफेक्शन ढूंढती है, वो बोलता है इधर आओ, फिर उसकी तस्करी हो रही है। सो यू सी हाउ डोमेस्टिक वायलेंस इज कंट्रीब्यूटिंग टू इट, हाउ डिप्रेशन इज कंट्रीब्यूटिंग टू इट। मेरे पास केसेस, लोग फोन करके बोलते हैं, इसलिए बोल रही हूँ। फिर क्या बोलते हैं, माँ बाप टाइम नहीं देते बच्चों से, बच्चे फेसबुक, स्लैक, डिस्कॉर्ड में चैट करते हैं, फिर लड़के से मिलते हैं। फिर बड़े एमएनसीज में माँ बाप काम करते हैं, फिर बच्ची से जब मिलती हूँ तो बोलती हूँ क्यों चली गई थी उस लड़के से, वो लड़का अच्छा नहीं था, बोलते वो तो प्यार करता था। फिर जब पूछते हैं क्यों, घर वाले प्यार नहीं करते, हाँ घर वाले नहीं प्यार नहीं करते, तो इतना महंगी महंगी, ये प्यार थोड़ी ना होता है, चीजें देना, टाइम नहीं देना। सो आई वुड जस्ट टेल एवरीबडी गिव्स बर्थ टू चिल्ड्रन। पैदा करना आसान है, संभालना मुश्किल है। अगर नहीं संभाल सकते बच्चों को तो पैदा मत करिए, सबसे रिक्वेस्ट है, मैं ये बोलती हूँ। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जो रियलिटी है। दूसरा ये है, अपने फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करें। हम खाते टाइम भी फ़ोन पे रहते हैं, हम लोग सब, कुछ इंक्लूड्स मी ऑल्सो। मैं बोल रही हूँ कि वी आर सो मच इनटू दिस वर्चुअल वर्ल्ड, और आजकल अब मैक्सिमम ट्रैफिकिंग जो हो रही है सोशल मीडिया से, मैक्सिमम 80%, मेरे 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 अनुभव में, मेरे एक्सपीरियंस में, मैं सबका अनुभव सबके ऊपर नहीं बोल सकती, अपना जो काम है उसी पे बोलूंगी। 80% ऑफ द ट्रैफिकिंग इज हैपनिंग थ्रू सोशल मीडिया, बिकॉज इट्स ट्रैकलेस। आईपी एड्रेस अलग हो सकता है, सैटेलाइट के थ्रू आप अलग लोकेशन दिखा सकते हो, लोगों को खरीदना बेचना यूपीआई के थ्रू हो रहा है। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी अलर्ट। ध्यान रखिए आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ध्यान रखिए रिश्तेदार कहाँ जा रहे हैं, लोकेशंस ट्रेस हो रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, लोकेशन डाल देते हैं। बी वेरी केयरफुल, बिकॉज सी, क्राइम ये नहीं देखता, जुर्म ये नहीं देखता है कौन पैसे वाला है कौन गरीब है। एक टाइम पे होती थी, बट आजकल एलिट फैमिली से, अपर मिडिल क्लास फैमिली से भी लोग गायब हो रहे हैं, इसलिए बोलना चाहती This has been so enlightening, and thank you, ma'am, for your हूँ। थैंक precious यू। time. This has been really, really empowering for all the audience, I guess. And we end this podcast on this note only. Thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe, and spread this word among your friends and families. Thank you so much.